Good morning, dear students. I am Dr. Indermal Goyal, lecturer of accountancy. Today, in this video, we will discuss about all the contents of balance sheet to be prepared by a business entity at the end of each accounting year oblique financial year. Accounting year is a consecutive period of 12 months for which all the transactions are properly recorded in the books and accounts, and financial statements are prepared at the end of the year. Accounting year means financial year. Now in India and in almost all countries of the world, it is essential to close the books and accounts of every business and non-business entity on the basis of financial year. हिंदी में बोलते हैं वित्तीय वर्ष. Financial year is a consecutive period of 12 months ranging between 1st April to 31st March of the next year. जैसे हमारा जो करंट अकाउंटिंग ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर जो है इट इज 2019-20. It is started from 1st April 2019 and will come to an end on 31st March 2020. Why we close the books and accounts? You know that it is necessary for every entrepreneur to close the books and accounts at the end of financial year so as to calculate operational result of conducting any business activity and to disclose financial position. Operational result may be profit and loss. If there is profit to an entrepreneur, it will certainly motivate him to work hard for the subsequent year and to put his efforts for expansion of business. And balance sheet is prepared to calculate and to disclose financial position of the business. Balance sheet is the most important part of financial statement of any kind of organization because it is summary of or statement of affairs, statement of financial affairs of any entity. It reflects all the assets and liabilities of the business. You see the format of balance sheet. We have written as on in its heading. Balance sheet as on 31st March 2020. It means this balance sheet will reveal all the balances of personal and real account of the business entity on 31st March. What is the actual position on 31st March 2020? So as on means उस particular date को बिजनेस की पोजीशन कैसी थी, ना एक दिन पहले की बता रहा है ना एक दिन बाद की बता रहा है. पूरे साल भर में जो एक्टिविटी हुई और उस बिजनेस में जितना कैपिटल लगी हुई है और उस कैपिटल और बोरोड कैपिटल को मिलाकर बिजनेस ने वो एक्सपेंसेस कौन कौन सी कैपिटल एसेट्स में खर्च किया है, बिजनेस की कौन कौन सी करंट एसेट्स है, लिक्विड एसेट्स है, ये सारा अल्टीमेट पोजीशन को बताता है. इसलिए आप ये कह सकते हैं लायबिलिटीज मींस रुपए कहां से आए और एसेट मींस उस बिजनेस के सारे रुपए कहां खर्च हो रखे हैं. हाउ कम
where gone. ये sources हो गए liabilities. Liability side reflects and refers to the sources of finance and assets depicts application of finance. Total financial resources of the business as capital and as borrowed fund is utilized in different types of assets. What are the various name of the assets? What is the value of each individual assets? Where is the concentration of financial resources in assets of the business? So by going through the balance sheet items, one can easily understand the real position, internal position of the business organization. The total of amount of balance sheet also reflects the total strength of the business, scope of the business. क्योंकि अगर किसी बैलेंस शीट की टोटल 15 करोड़ है, इसका मतलब वो 15 करोड़ का पार्टी है, वो ऑर्गेनाइजेशन 15 करोड़ का। और अगर किसी बिजनेस की टोटल ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी साइड 200 करोड़ है, तो इट इज बिगर देन द प्रीवियस वन। 15 करोड़ से ज्यादा 200 करोड़ की बिल्ड जो एसेट्स है, 200 करोड़ की टोटल ऑफ बैलेंस शीट है, तो वो 200 करोड़ का बिजनेस है। और अगर किसी बिजनेस का बैलेंस शीट की टोटल 5000 करोड़ है, वो तो उससे भी बड़ा बिजनेस हो गया। सो द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट, total of assets and liability side of the balance sheet refers to the total financial strength of that organization, of that entrepreneur, to whom the balance sheet relates. So balance sheet is one of the most important part of financial statement of any entity, any individual, which reflects all kind of assets where the money is invested and all kind of liabilities or the sources where from the finance is raised. A business is started with the help of capital, and capital is the internal liability. Capital is that money which is invested by the entrepreneur himself out of his personal resources, and it is part of the liability of the business. Due to separate entity concept of accounting, when one of the businessmen invests capital in business, he becomes the creditor of the business and he gets the right to charge interest on his capital. तो कैपिटल एक इंडिविजुअल जो बिजनेसमैन है, वो उसका खुद का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है बिजनेस में, ये बताता है। और जो लायबिलिटीज होती हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती हैं, वो ये बताती हैं कि बिजनेस ने कौन कौन से बाह्य स्रोतों से कितना कितना रुपया उधार लिया है और कौन कौन से लायबिलिटी के नाम से लिया है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज इन ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन and different types of assets used in business organization. So by preparing this format of the balance sheet, I will try to explain you what are the various contents of the business, assets and liabilities. तो ये अगर आप समझ पाते हैं तो ऐसी स्थिति में किसी भी बिजनेस की, फर्म की, इंडिविजुअल की, सोल ट्रेडिंग कंसर्न की, कंपनी की बैलेंस शीट को देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी फाइनेंशियली साउंड पार्टी है। तो पहले मैं इधर लायबिलिटी साइड का आइटम लिखूंगा, और लायबिलिटी साइड मतलब सबसे पहला बिजनेस का लायबिलिटी है कैपिटल, जिससे बिजनेस शुरू होता है। नो प्लान कैन बी एग्जीक्यूटेड विदाउट फाइनेंशियल रिसोर्सेज। सो इफ यू वांट टू establish a business, you must have your own financial resources. You have to put your financial resources in business. Then some other people will contribute you, will supply you goods
and it will be part of the liability of the business. So first of all we will discuss about capital. जो कैपिटल एक बिजनेसमैन खुद लगाता है वो बेस होगी। अब इसके अंदर हम ये सोल ट्रेडिंग कंसर्न का बैलेंस शीट बना रहे हैं, एक इंडिविजुअल बिजनेस का बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो उस कैपिटल में क्या क्या आइटम ऐड होते हैं? तो बैलेंस शीट में कैपिटल इंटरनल साइड में लिखेंगे और उसके बाद हम करेंगे ऐड एडिशनल कैपिटल। अगर इनिशियली मान लीजिए 5 लाख रुपए लगाए और 3 महीने बाद में बिजनेसमैन ने 2 लाख रुपए और इन्वेस्ट किया कैपिटल के लिए, इट इज कॉल्ड एडिशनल कैपिटल। अतिरिक्त पूंजी लगाई वो ऐड होगा। फिर अगर वो बिजनेसमैन है और उस पे इंटरेस्ट लगाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो उसकी कैपिटल में ऐड होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए म्यूचुअल ट्रांजैक्शन बिटवीन बिजनेस एंड बिजनेसमैन। इट इज चार्ज ड्यू टू सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। The reason of charging interest on capital is that had this amount of capital been invested in some outside securities, it would have resulted certain return in form of interest and dividend. यानी कि अगर आप किसी बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं, इसका मतलब आपको जितना एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो अब नहीं मिलेगा। अगर कई लोग जिनके पास पैसा है बैंक में एफडी करा देते हैं, फिक्स डिपॉजिट करा देते हैं, तो उन पे 9% 10% से इंटरेस्ट मिल जाता है बिना कुछ किए। अब किसी बिजनेसमैन ने 5 लाख रुपए बिजनेस से स्टार्ट करने के लिए लगाए हैं, तो उसको ब्याज की हानि होती है, इसलिए वो ब्याज अपनी कैपिटल पे वसूल करता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाने के बाद में अगर कुछ सरप्लस बचता है तो वो उसका प्रॉफिट है, वो उसका एफर्ट्स का रिजल्ट माना जाता है। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इससे उसकी कैपिटल बढ़ती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये ऐड होगा। ये जो मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं बच्चों, आप लोग भी अपने कॉपी और पेन साथ में रखिए, और जो मैं बोल भी रहा हूं लिख भी रहा हूं, यू मस्ट ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट इन द सेम फॉर्मेट एज एंड व्हेन वी डिस्कस थ्रू वीडियो। ओके, तो आपको भी लिखना चाहिए, बनाओगे लिखोगे तो बाद में भी आप कभी भी देख सकते हो। एंड जब सारे आइटम है वो सीक्वेंस में आने चाहिए, क्योंकि बैलेंस शीट जो बनाई जाती है उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, स्पेसिफिक फॉर्मेट है। यू नो, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम अकाउंटिंग अथॉरिटी इन इंडिया एंड इट इशू सो मेनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड अकाउंटिंग गाइडलाइंस फॉर द accountants, for the chartered accountants who assume the responsibility of preparing the financial statement of business and non-business organization, and they are bound to follow accounting standard, the statement of accounting practices and generally accepted accounting rules. So for preparation of balance sheet they all are to be followed, and the format is like this. This balance sheet is in order of fixity, क्योंकि there are two order of preparation of balance sheet, order of fixity and order of liquidity. Order of fixity means जिसमें लायबिलिटी साइड में फिक्स लायबिलिटी ऊपर आएगी, करंट लायबिलिटी नीचे आएगी, अलग नीचे लिखी जाएगी उसके बाद में। उसी तरह ऑर्डर ऑफ फिक्सिटी जिसे हिंदी में स्थायित्व क्रम बोलते हैं, इसमें एसेट साइड में सबसे ऊपर फिक्स्ड एसेट्स आएगी, स्थायी संपत्तियां आएगी, और उसके नीचे बाद में हम करंट एसेट्स या चल संपत्तियां लिखेंगे, तो वो ऑर्डर ऑफ फिक्सिटी कहलाता है। और इसका अपोजिट होता है ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। जब आप ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी भी बनाएंगे तो करंट एसेट्स में जो सबसे नीचे करंट एसेट्स लिखी जाती है, लिक्विड एसेट, वो सबसे ऊपर आ जाएगी, और इस तरह से सारे आइटम पलट जाएंगे। नीचे वाला लास्ट वाला आइटम फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड लास्ट वाला ऊपर सेकंड में आएगा, इस तरह से रिवर्ट हो जाएगा सारा, तो वो ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी हो जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन में लिख देते हैं कि प्रिपेयर द बैलेंस शीट इन ऑर्डर ऑफ फिक्सिटी और इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, तो वी हैव टू कीप दिस फैक्ट इन माइंड। तो मैं ये जो बना रहा हूं बैलेंस शीट इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, ऑर्डर ऑफ फिक्सिटी, हिंदी में बोलते हैं स्थायित्व क्रम, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें कैपिटल में 3 आइटम ऐड होते हैं, जैसे एक और आइटम क्या होगा, कैपिटल में ऐड होता है नेट प्रॉफिट, द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस इज प्रॉफिट and the profit of a business belong to that businessman, and capital account is the personal account of the proprietor. इसलिए अगर किसी बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है तो वो बिजनेसमैन का है, और बिजनेसमैन
का पर्सनल अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट, इसलिए वहां कैपिटल में जोड़ा जाता है। तो ये 3 आइटम हमने जोड़े। अब इसके बाद में लेस करेंगे हम वो आइटम, वो मदें जो कि हम व्यापारी का खुद का व्यक्तिगत व्यय मानते हैं और वो उसकी पूंजी को घटाता है, क्योंकि ड्यू टू सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट if a businessman has right to charge interest on his capital, similarly he will be liable to pay interest on his drawing. If we draw money from the business, it will reduce his capital to that extent and he will be liable to pay interest on his drawing also. तो इसलिए जब आप क्लोजिंग कैपिटल निकालोगे, ये हमारी ओपनिंग कैपिटल थी, अब क्लोजिंग कैपिटल अब क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगी, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट मींस बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड at the end of the accounting year. At the end of accounting year on 31st March 2020, when we will prepare balance sheet of an entrepreneur, we will add 3 items in the capital and we will separate the following items. क्या? Drawing. Number 1, drawing घटाया जाएगा, drawing for household expenses, ठीक है। अब इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाया गया, वो भी घटाया जाएगा, तो we will write interest on drawing. फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो वो बिजनेसमैन का पर्सनल एक्सपेंसेस है, वो भी ड्राइंग ही है, तो वो भी कैपिटल में से घटाया जाना चाहिए। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, केवल इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा हुआ तब नहीं घटाएंगे, वो बिजनेस का एक्सपेंसेस माना जाएगा, बिजनेस प्रीमियम का हो सकता है, ठीक है। और इनकम टैक्स, अगर किसी बिजनेस की ट्रायल बैलेंस में इनकम टैक्स अगर लिखा हुआ है तो वो इनकम टैक्स भी बिजनेसमैन का पर्सनल एक्सपेंसेस माना जाता है, तो वो भी ड्राइंग होता है, वो भी हम कैपिटल में से घटाएंगे, राइट। तो यहाँ हम लिखेंगे इनकम टैक्स, और उसके बाद में ना बिजनेस का रिजल्ट नेट प्रॉफिट होता है, देखो ऐड करना है, और कभी कभी बिजनेस का रिजल्ट नेट लॉस आता है। नेट लॉस कहाँ से आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने पर आता है। कैसे आता है, वो कैसे बनाते हैं? जिनको नहीं पता है तो मेरा एक प्रीवियस वीडियो है, वो देखेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पहला मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का एक वीडियो है, फिर उसके बाद में ट्रेडिंग अकाउंट का एक वीडियो है, उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है, और फिर बैलेंस शीट बनती है। तो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द बैलेंस शीट इन बेटर वे, यू हैव टू वॉच माय वीडियो ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ऑन ट्रेडिंग अकाउंट एंड ऑन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो ये 4 हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इन सब का मैंने अलग अलग वीडियो बना के उसका डिटेल कंटेंट को डिस्कस किया है। तो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, यू विल वॉच द वीडियो केयरफुली, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू विल गो थ्रू द बुक, एंड इवन इफ यू हैव एनी डाउट यू विल डिस्कस विद मी, सर्टेनली यू विल लर्न एवरीथिंग अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. So net loss may be the result of the business organization if there is a loss at the end of the accounting year through profit and loss account, it will be subtracted from capital. तो देखिए आप कैपिटल में 3 आइटम हमने ऐड किए, 5 हमने आइटम लेस किए, उसके बाद में ऐड और लेस करने पर जो अमाउंट आएगी वो आप आउटर कॉलम में लायबिलिटी साइड में लिखोगे, ठीक है। और अब लायबिलिटी साइड में क्या लिखते हैं? कभी-कभी बिजनेसमैन है वो भी जनरल रिजर्व बनाता है, तो जनरल रिजर्व is created out of profit. Business is also artificial person created by law. It is known in the market by its own name. आप देखते हैं ना हर दुकान पे कोई कोई नाम लिखा होता है, राहुल एंटरप्राइजेज, सोहनलाल, मोहनलाल एंड सन्स, अभिषेक ब्रदर्स, है ना, रवि एंड सन्स, गहलोत एंड कंपनी, या ऐसा कुछ भी नाम लिखा होता है और वो बिजनेस उसी नाम से जाना जाता है। तो इसलिए अब जब बिजनेस है वो अपने आप में एक व्यक्ति है, तो हर व्यक्ति को लाइफ में कोई न कोई परेशानी आती है, वैसे ही बिजनेस में भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ न कुछ चैलेंजेस आते हैं, जैसे चैलेंज ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी, चैलेंज ऑफ चेंज इन द फैशन एंड हैबिट ऑफ द पीपल, चैलेंज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, चेंज इन द सोशल इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द कस्टमर ऑफ योर प्रोडक्ट। तो वो सब आपको मीट आउट करना, वो आपको सबको एडजस्ट करना, और वो तभी पॉसिबल होता है जब हमारे पास इंटरनली फाइनेंशियली हम साउंड होते हैं। इसलिए मोस्ट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट एंड मेंटेन
a general reserve which is created out of the net profit after tax. अपना बिजनेस का प्रॉफिट में से टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो आप सारा कैपिटल में ऐड नहीं करके जनरल रिजर्व में रख सकते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से रख सकते हैं। वो प्रॉफिट ऐड नहीं करके आपने अलग ही रखा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस कहलाता है, तो वो आप इधर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बिजनेस को जो चाहिए वो लॉन्ग टर्म लोन। कई बार बिजनेस अपनी बड़ी फिक्स एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए लॉन्ग टर्म लोन लेता है। वो लोन फ्रॉम बैंक हो सकता है, वो लोन फ्रॉम स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, तो ये आप इधर ले लेंगे। अब उसके बाद में मैं लिख रहा हूं करंट लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस, ऐसी लायबिलिटी जो जिसका वैल्यू है ना डे बाय डे आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन चेंज होता रहता है, तो वो करंट लायबिलिटीज कहलाता है, चल टाइप का कहलाता है। ये जितना भी बैलेंस शीट आइटम है इन सब के बारे में जो टर्मिनोलॉजी है ना वो मैंने अलग से वीडियो बनाया। देयर आर 3 मोर वीडियो ऑन टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। तो अगर आप बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आने वाले हर आइटम के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो यू मस्ट वॉच माय वीडियो ऑन टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग इज a separate branch of study. It is a scientific subject. It is a worldwide phenomena and it has its own terminology. There are so many specific words in the accounting. So if you want to understand accounting in better way, you must watch my video on what is accounting and terminology related to accounting and my 3 videos on basic concept of accounting. वो जब तक आप नहीं देखोगे तब तक आपको पूरी अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है वो समझ में नहीं आएगा। उसके बाद में आपको मेरा एक वीडियो और है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, पूरा अकाउंटिंग की क्या प्रक्रिया है, एक अकाउंटेंट किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या काम करना है, व्हाट इज द सीक्वेंस एंड व्हाट इज द इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, वो सब आप देखेंगे तो आप अकाउंटिंग अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो करंट लायबिलिटीज हम लिखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, SUNDRY, सन्ड्री क्रेडिटर्स। फिर बिल्स पेएबल, जो आपने बिल एक्सेप्ट कर रखे हैं वो आपका करंट लायबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल पेएबल, बैंक लोन, शॉर्ट टर्म लोन हो सकते हैं, बैंक लोन या ST शॉर्ट टर्म लोन लिखा हुआ और इसका नाम ये भी हो सकता है सन्ड्री क्रेडिटर, बिल पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है। अगर आपका बिजनेसमैन है वो करंट अकाउंट खोलता है बैंक में और करंट अकाउंट में आपको बैंक फैसिलिटी देता है क्या, टू ड्रॉ मोर मनी देन व्हाट यू हैव डिपॉजिटेड फॉर फ्यू डेज, इट इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अधिविकस, ये आपका हो सकता है। इसके अलावा अगर आपने जो माल बेचा उस पर टैक्स कलेक्ट किया है तो वो सेल टैक्स आपने अगर गवर्नमेंट अकाउंट में जमा नहीं करा है तो इनपुट सेल टैक्स जो आपने पे करा और आउटपुट सेल टैक्स जो आपने कलेक्ट किया, तो आउटपुट सेल टैक्स हमेशा इनपुट टैक्स से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सेलिंग प्राइस होती है ना इट इज ऑलवेज हायर देन द कॉस्ट प्राइस या परचेज प्राइस, तो इसलिए जो टैक्स आपने कलेक्ट किया हुआ है और वो आपके पास ही पड़ा है तो आउटपुट टैक्स, ठीक है, आउटपुट टैक्स में भी वो IGST हो सकता है, CGST हो सकता है, SGST हो सकता है। तो आउटपुट टैक्स जिसे आप सेल टैक्स के नाम से जानते हैं, पुराना नाम सेल टैक्स है, नाउ इट विल बी आउटपुट सेल टैक्स। वो जो आपने बिजनेस में कलेक्ट किया है सेल्स के टाइम और टिल डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यू हैव नॉट yet deposited to the public exchequer, to the government accounts, revenue account, government of India and state government account। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो हमारा करंट लायबिलिटी का पार्ट है, जो एक्सपेंसेस आपने पे कर देने चाहिए आपने पे नहीं करा तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसके अलावा जो है ना अनअर्न्ड या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस जो बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम, ये भी हमारी करंट लायबिलिटी है। तो ये हमारे कुछ लायबिलिटी साइड के एग्जाम्पल हैं और अब हम बात करेंगे एसेट साइड में।
एसेट साइड में जब हम ऑर्डर ऑफ फिक्सिडिटी में बनाते हैं तो सबसे पहले आती है फिक्स्ड एसेट्स, स्थायी संपत्ति। फिक्स्ड एसेट्स आर those which are long lasting in nature, which are purchased not for sale but to render valuable services to the customer and clients and can be used for so many years, and without fixed assets no business can be carried on smooth and fair manner. तो what are various assets? इसको भी हम दो भाग में बांट सकते हैं, एक तो intangible assets और दूसरा tangible assets। तो पहले हम डिस्कस करेंगे intangible assets, अदृश्य संपत्तियां। ऐसी कुछ संपत्तियां होती हैं जो बिजनेस में दिखाई तो नहीं देती है बट उनके लिए हमें वैल्यू पे करनी पड़ती है एंड दे प्ले अ वाइटल रोल इन एडवांसमेंट ऑफ द बिजनेस, द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। तो इनटेंजिबल एसेट्स जैसे ना गुडविल हो सकती है जो आप परचेज करते हैं किसी बिजनेस को और उसकी नेट वर्थ से ज्यादा अमाउंट पे करते हैं तो आपने गुडविल पेड किया। जैसे आपने कोई एक बिजनेस खरीदा, पुराना छोटा बिजनेस था, उसमें 5 लाख रुपए के एसेट्स था, 1 लाख रुपए की लायबिलिटी, तो कैपिटल बिजनेस की नेट वर्थ कितनी हुई? एसेट्स माइनस लायबिलिटी 4 लाख। लेकिन अगर आपने उस बिजनेस का पेमेंट 6 लाख रुपए किया क्योंकि वो एक ऑनगोइंग बिजनेस है, उसका प्लेस जो है ना वैल्यूएबल है और वो एक एस्टेब्लिश बिजनेस है और वहाँ अच्छा सेल्स होती है, प्रॉफिट होता है, तो इसलिए कोई नया एंटरप्रेन्योर किसी पुराने एंटरप्रेन्योर से वो बिजनेस खरीदता है तो उसमें जितना माल पड़ा उससे ज़्यादा पैसा देता है तो वो एक्स्ट्रा पेमेंट देना, दैट इज कॉल्ड गुडविल, ख्याति, प्रतिष्ठा। तो ये गुडविल हो सकता है। फिर एक पेटेंट राइट होता है, PATENT। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपने कोई प्रोडक्ट बनाना है तो आपने कोई सर्टेन फॉर्मूला कोई साइंटिस्ट से कोई इंस्टीट्यूट से आपने खरीदा है एंड दैट फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो वो हमारा पेटेंट कहलाता है उसको, क्योंकि उसके लिए हमें गवर्नमेंट से उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है ताकि और कोई हमारा प्रोडक्ट का डुप्लीकेट नहीं बनाए, तो पेटेंट राइट कहलाता है, PATENT RIGHT, पेटेंट राइट। ट्रेडमार्क, व्यापार का चिन्ह, हर प्रोडक्ट का अपना एक कंपनी का अपना एक स्पेशल लोगो होता है, एम्ब्लम होता है, वो उसका ट्रेडमार्क कहलाता है। जैसे ताजमहल चाय, तो ताजमहल चाय का जो कंटेनर है, बॉक्स है, उस पर बना हुआ होता है तो पता लग जाता है कि ताजमहल कंपनी का चाय है ना। ऐसे ही जो क्रॉम्पटन ग्रीव्स हमारी एक इलेक्ट्रिकल कंपनी है जो फैन और बनाती है तो उन पे इतना हाथ का एक निशान है, वो उसका ट्रेडमार्क है। या हर बड़े बिजनेसमैन का जो लोगो होता है वो उसका ट्रेडमार्क है। इसके अलावा कॉपीराइट भी एक एसेट होता है, COPY, इसे कृति स्वाम्य बोलते हैं। ये कोई बुक के ऑथर या पब्लिशर है वो ऐसा कॉपीराइट लेते हैं। कॉपीराइट मतलब किसी एक पर्टिकुलर कंटेंट, लैंग्वेज और चैप्टर स्कीम के अंतर्गत कोई बुक जो लिखी जाती है वो कोई ऑथर लिखता है, वो उसकी खुद की व्यक्तिगत मेहनत और अनुभव के आधार पर होता है, कोई उसकी नकल नहीं करे। इसके लिए अगर आप कोई बुक लिखते हैं तो उसको भी है ना कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड करा लेते हैं। तो फिर अगर कोई आपका स्क्रिप्ट का, कंटेंट का, बुक का डुप्लीकेट बना के अपने नाम से बेचे तो आप अपना इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट में कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत कंप्लेन करेंगे तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को है ना पनिशमेंट दिया जाता है। तो ये हमारी कॉपीराइट, गुडविल, पेटेंट राइट एंड ट्रेडमार्क, ये 4 हमारी इनटेंजिबल एसेट्स हैं जो दिखाई तो नहीं देती है लेकिन जिनके बिना बिजनेस लाभप्रद स्थिति में चलाना संभव नहीं होता है। अब मैं लिख रहा हूँ कुछ टेंजिबल एसेट्स, TANGIBL। तो टेंजिबल एसेट्स वो हैं जो हमें दिखाई देती है, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। तो उसमें जैसे मान लो मैंने लिखा लैंड एंड बिल्डिंग, BUILD। अब इसमें से ना डेप्रिसिएशन घटाकर लिखा जाएगा। मैं एक फिक्स एसेट्स का डेप्रिसिएशन लगा देता हूँ क्योंकि सारी फिक्स एसेट्स होती है, टेंजिबल होती है, उन पे डेप्रिसिएशन लगता है। तो लेस डेप्रिसिएशन ऐसा करके फिर लिखा जाता है। तो ये यहाँ लिख दिया, फिर बाहर लिख दिया। अब मैं बाकी वाली फिक्स एसेट्स बिना डेप्रिसिएशन काटे लिख रहा हूँ सिर्फ ये समझाने के लिए कि डेप्रिसिएशन इज ए लॉस or reduction in value of assets which is subtracted from the concerned assets while preparing the balance sheet, and depreciation एक loss है
तो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते तो हमने वहाँ टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग फर्नीचर प्लांट मशीनरी ऐसा लिखा था, तो वो 2 जगह था। एडजस्टमेंट के लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो और बना के भेजूंगा, एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद लैंड बिल्डिंग विद प्लांट एंड मशीनरी, तो मैं नाम लिख रहा हूँ, आप भी अपनी कॉपी में लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये सब बिजनेस के लिए अनिवार्य है, जिनके बिना किसी बिजनेस के द्वारा अपने कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स को अच्छी सेवाएं नहीं दी जा सकती। लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर एंड फिक्सचर, मोटर कार कह सकते हैं या वैन कह सकते हैं, ये हमारे बिजनेस की एसेट्स होती है। फिर लाइव स्टॉक, कई बड़े बड़े बिजनेसमैन ऐसे टिपिकल एरियाज में होते हैं, वहाँ पे जो है पोनी है, कैमल है, एलिफेंट है, हॉर्स है, जिनके बिना बिजनेस को स्मूथली नहीं चला सकते, तो वहाँ वो जो लाइव स्टॉक है, एनिमल्स होते हैं ना, वो लाइव स्टॉक कहलाते हैं। इसके अलावा लूज टूल्स, जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो मशीनें प्लांट यूज करती है, तो उनको रिपेयर मेंटेनेंस के लिए कुछ टूल्स चाहिए, वो भी काफी महंगे होते हैं, इसलिए वो हमारी फिक्स एसेट्स का पार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट, अगर किसी बिजनेस में ज्यादा पैसा है तो वो इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी हो जाता है, शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट, वो मैंने यहाँ लिख दिया, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी, लूज टूल्स, ठीक है। अब ये हमारे कुछ बिजनेस की फिक्स एसेट्स हो जाती है। आप यहाँ फिक्स डिपॉजिट भी लिख सकते हैं, बैंक में अगर आपने पैसा फिक्स डिपॉजिट कराया है तो वो भी हमारा फिक्स एसेट्स का पार्ट है, ठीक है। अब हम लिखेंगे कुछ करंट एसेट्स, CURE, करंट एसेट्स आर those assets the value of which change from day to day and from transaction to transaction, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले है स्टॉक, और कभी कभी इसको वर्ड दे देते हैं इन्वेंट्री, INVENTOR, ठीक है। स्टॉक या इन्वेंट्री में क्या आएगा, जो माल जो आप खरीद कर बेचते हैं, वो माल जो आपके पास में, वो सब इन्वेंट्री या स्टॉक में आता है। इसमें और क्या क्या शामिल होगा, स्टॉक एट गोडाउन, अगर आपका बिजनेस का प्रीमिसेस के अलावा बड़ा क्वांटिटी में माल गोडाउन में पड़ा है तो वो सब यहाँ जोड़ा जाएगा। कौन कौन सा माल, स्टॉक एट गोडाउन, स्टॉक एट बिजनेस प्रीमिसेस जो आपके बिजनेस प्लेस पर है, एक होता है स्टॉक इन ट्रांजिट, जो माल आपने किसी सप्लायर से खरीद लिया, आपने परचेज में एंट्री कर ली, लेकिन अभी वो माल जो है ना आपके बिजनेस प्लेस तक पहुंचा नहीं, अभी रास्ते में ही चल रहा है, तो वो स्टॉक इन ट्रांजिट कहलाता है। फिर होता है स्टॉक एट साइट, अगर आप कोई बड़े कॉन्ट्रैक्टर, अगर आपका अलग अलग जगह पर ठेके चल रहे हैं, तो वहाँ पे माल सामग्री जो पड़ी हुई है वो अलग अलग जगहों पर है, और वो आपका स्टॉक या एसेट्स का पार्ट होगा, उसे बोलते हैं स्टॉक एट साइट। एक इसके अलावा और आता है स्टॉक विद कस्टमर, अगर आपने किसी कस्टमर को माल इस कंडीशन में बेचा है कि अगर आपको पसंद आए तो रख लेना, नहीं पसंद आए तो वापस लौटा देना, और इसके लिए आपने 10 दिन का बाय द वे टाइम दिया है, तो एंड ऑफ द ईयर से 2-3 दिन पहले ही आपने उसको माल इस कंडीशन पे बेचा था कि पसंद आए तो रख लेना, नहीं तो लौटा देना, और अभी 3 दिन ही हुए, 7 दिन अभी कस्टमर के पास और है लौटाने के लिए, तो अगर वो कस्टमर आपको 7 दिन बाद लौटाएगा तो वो अगला साल तक शुरू हो जाएगा। इसलिए करंट ईयर के एंड में हम ऐसे माल को वो स्टॉक विद कस्टमर के नाम से दिखाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ सारे नाम नहीं लिख रहा हूँ, मैंने आपको समझा दिए। स्टॉक इन्वेंट्री में क्या क्या आएगा, स्टॉक एट गोडाउन, स्टॉक एट बिजनेस प्रीमिसेस, स्टॉक विद कस्टमर, स्टॉक इन ट्रांजिट, स्टॉक एट साइट, वो सब या जोड़ कर लीजिए। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स, विविध देनदार, जिन लोगों को हमने उधार माल बेचा वो हमारे डेटर्स होते हैं, उसको अंदर लिख के हम इसमें से करते हैं लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। जो देनदार का पैसा डूब सकता है उनके लिए हम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाते हैं, लाभ में से उसको घटा कर बैलेंस शीट में यहाँ बाहर लिखेंगे। स्टॉक डेटर, बिल्स रिसीवेबल, हमारा नेक्स्ट करंट एसेट्स का एग्जांपल है बिल्स रिसीवेबल, जिन लोगों का आपने उधार माल बेचा और वो कह रहे हैं हम आपको 3 महीने बाद दे देंगे, हमने उनसे स्टाम्प पेपर में लिखवा के ले लिया, इट्स ए बिल रिसीवेबल। तो स्टॉक डेटर, बिल रिसीवेबल, कैश स्टेटमेंट या बैलेंस स्टेटमेंट,
वो आपका एसेट्स है। फिर मार्केटेबल सिक्योरिटी ऐसी आपने प्रतिभूतियां खरीदी है जो आप कभी भी बेच सकते हैं, बाजार में बेची जा सकती है आसानी से, तो मार्केटेबल सिक्योरिटी कहलाता है। स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल, बैलेंस एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, कैश इन हैंड, ये भी आपका मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ कैपिटल है। और उसके बाद में आप एडजस्टमेंट में कह सकते हैं एक्रूड इनकम, ACCRUED, income that you have earned at end of the year but not yet received. Accrued income, it is also part of the current assets of the business. और प्रीपेड एक्सपेंसेस, कभी कभी बिजनेसमैन ने एक्सपेंसेस एडवांस में पेड कर दिए नेक्स्ट ईयर के लिए, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस आर आल्सो लाइक आवर एसेट्स, क्योंकि हमने अगर एडवांस में दे दिया तो बाद में जब हमारा काम होगा तब हमें वो देना नहीं पड़ेगा, तो इसलिए ये हमारा एसेट्स हो जाता है, करंट एसेट्स का एग्जांपल हो जाता है। इसके अलावा आपने लोन टू, आपने एडवांस दिया हुआ है अपने एम्प्लॉय को, तो ADVANC, एडवांस और लोन टू, जिसको भी एम्प्लॉय को दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे। तो ये करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स का दो लिखा हमने, इंटेंजिबल एंड इंटेंजिबल, और ये बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में हमारा कैपिटल एंड अदर लायबिलिटीज। सो दीज आर द आइटम्स ऑफ assets and liability side of the balance sheet of a business organization. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी या स्टैम्प होता है तो भी आप अलग से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ स्टॉक ऑफ इन्वेंटरी का मतलब मैंने माल का स्टॉक लिखा है, कभी कभी दिया हुआ होता है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टैम्प, तो वो भी बिजनेस की एसेट्स ही होता है, तो उसको आप अलग से यहाँ नीचे लिख सकते हैं, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ गुड्स, तो वो अलग लिखा जाएगा, ठीक। तो ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज और आइटम्स ऑफ द बैलेंस शीट है। तो आई एम श्योर दैट you got the points, and these are the important elements and contents of the balance sheet. So thank you very much for watching this video. Now share this video and subscribe this video so that certainly you will get my all the next video. And I am preparing my videos on each and every important aspect of our basics of accounting. So if you want to know some more information and some more contents on accounting, you can search by my name, Dr. Indermal Goel. Certainly my different videos on different topics will solve your problems in understanding the accounting in better way. And after watching this video you can refer the book also. We try to solve example from the book and then try to solve the questions given for each and every chapter, so you will be able to understand. Thank you very much. God bless you.